भारत की एनर्जी स्टोरी ये बड़ी है, थोड़ी उलझी हुई है और बहुत तेजी से बदल रही है। ऊर्जा की डिमांड लगातार बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ेगी। But it's also one of the biggest clean energy hope stories. देश सोलर पर बड़ा दांव लगा रहा है, वाकई में बड़ा। We are talking the 5th largest solar capacity in the world. Acres of sun-soaked nothingness, now a solar powerhouse the size of a small city. Wind, India's got that too, over 40 gigawatts and climbing. In just a decade, renewables went from a footnote to almost 40% of installed power. It's not just mega projects. One of the biggest players in this clean energy push, Tata Power. Tata Power. Sustainable is attainable. India's already feeling the heat, literally. More floods, deadly heat waves, climate change isn't the future, it's right now. That's why India is turning to clean energy, not just as a solution, but as a necessity. Okay, here's a big picture. The planet has already warmed up by about 1.2 degrees Celsius since the industrial era began. And if we don't act fast, we are on track to hit 2.5 to 3 degrees Celsius by the end of the century. Now here's the challenge. India's energy demand is booming, projected to double by 2040. Why? Because it's trying to lift millions out of poverty and fuel one of the fastest growing economies on the planet. But right now, over 70% of that energy still comes from fossil fuels. So how does India fit into the global climate puzzle? Well, it's aiming big. 500 gigawatts of non-fossil fuel energy by 2030. That's nearly half of India's total energy capacity, powered by sun, wind, and innovation. And this transition is driven by 3 key pillars. Number 1, combating climate change. Number 2, ensuring energy security. And number 3, driving economic growth. This isn't just about tech. It's about 1.4 billion people reimagining their future. India has an ambition of adding 500 gigawatt of renewable energy by 2030. We want to add around 20 gigawatt in next 4 to 5 years, which is 4 gigawatt or 5 gigawatt a year. So in terms of strategy, we are doing large projects, we are doing rooftop projects. Tata Power Solar engineered a floating solar plant right in the middle of the Narmada River's twin reservoirs. It's a first of its kind solar plant in India where innovation and clean energy all come together and float. मध्य प्रदेश के दिल में, जहां 2 बड़े डैम नर्मदा के पावन पानी को थामे हुए हैं, वहीं अब तैर रहा है एक साइलेंट रेवोल्यूशन। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट सिर्फ एक टेक्निकल मार्वल नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इसे बनाने वालों के दिल के बहुत करीब है। Omkareshwar is very close to our heart. It's a pioneering project for India. It's a very large-scale floating project. Since we are there into hydro operations for last 115 years now, so we exactly know what reservoir operation means, and we have used that experience here also. फ्लोटिंग सोलर में सोलर पैनल जमीन की बजाय पानी पर लगाए जाते हैं। ये पैनल रिजर्वॉयर की सतह पर बने पुल के ऊपर तैरते हैं। We can conserve the land, no need to deforest the area for making such a huge plant. And secondly, the thing is that we will have overheating of panels. Or the plant, when it gets overheat, panels get overheated, their lifespan will go down, efficiency will go down. Whereas in floating, they will have instant cooling effect. The difference of the temperature is where we will get the electricity extracted. फ्लोटिंग पानी के ऊपर होने की वजह से जो पैनल का सरफेस है वो 207 हेक्टेयर है, जिसकी वजह से जो इवोपरेशन होता है वाटर का वो भी सेव हो रहा है। उसके हिसाब से जो हमारे कैलकुलेशन है अराउंड 30.5 मिलियन टन मीटर वाटर हम लोगों ने इवोपरेशन से सेव करेंगे। और जो ग्राउंड माउंटिंग है उसमें एल्बिडो इफेक्ट नहीं मिलता है। एल्बिडो इफेक्ट मीन्स
जो रेडिएशन वाटर में जा रहा है या अर्थ में जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर मॉड्यूल पे दोबारा आता है और वहाँ से भी हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। 319 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से बना ये 126 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंडिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग इंस्टॉलेशंस में से एक है, जिसे सिर्फ 26 महीने में कमीशन किया गया। We have used around 2 lakh modules there, which are bifacial modules. So that way these modules are class 1 modules. बाइफेशियल पैनल्स दोनों साइड से सूरज की रोशनी पाते हैं। जब ये पानी की रिफ्लेक्शन के साथ लगते हैं तो इनकी एफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है, जिससे ये फ्लोटिंग अरेंजमेंट के लिए एकदम परफेक्ट बनते हैं। लेकिन पानी पर किसी चीज का निर्माण आसान नहीं होता। टाटा पावर की टीम को जमीन की बनावट की चुनौतियां, बदलते पानी के लेवल और अनप्रेडिक्टेबल वेदर का सामना करना पड़ा। The changing water levels makes it very difficult for anchoring and mooring requirements for this floating solar, because the floating solar has to remain at one location, it can't drift. So that anchoring and mooring for varying water level was a challenge which our engineers have solved at using technology. Because of the terrain, landscape, whatever the wind used to come becomes turbulent over here. So when we tow some panels or when we tow some IFP, they used to get, we used to have more boat capacities to tow it in a single direction. There were a lot of people getting involved. Geographically, our Tata team were there in Mumbai, Bangalore, but we all got united to extract the solutions for whatever problems comes in day-to-day construction activities. ये फ्लोटिंग आइलैंड, जिनमें हर एक में 9,600 पैनल्स हैं, उनको स्टेबल रखने के लिए मोरिंग सिस्टम, वेव ब्रेकर्स, बैलेस्ट टैंकर्स और अडेप्टिव केबल वेज का इस्तेमाल किया गया है। Each array we have 9,600 panels, and those panels of rectangular shape are interconnected with the anchors. So those anchors and mooring ropes are the prime foundations to keep it floating for 25 years. 260 हेक्टेयर में फैला देश का सबसे बड़ा इन्वर्टर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट हर साल 200 गीगावाट आवर से ज्यादा क्लीन एनर्जी ग्रिड को देता है। साथ ही ये जमीन और पानी दोनों को बचाता है। और करीब 1,74,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफसेट करता है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर प्लांट को मेंटेन करना उतना आसान नहीं है जितना इसका प्रभाव लगता है। जमीन पर तो आप आराम से पैनल तक जा सकते हो, कनेक्शन चेक कर सकते हो या कोई गड़बड़ी पकड़ सकते हो। लेकिन यहाँ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो एक बदलते हुए रिजर्वॉयर में फैले हैं, ये पूरा गेम ही अलग है। फॉल्ट पकड़ना और फिक्स करने का मतलब बोट्स यूज करना और हवा पानी का सामना करना। और यहाँ पे हम लोग का फ्लोटिंग में क्या है, जो फॉल्ट आता है उसको आइडेंटिफाई करना एक हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि ना जो हमारा पैनल लगा हुआ है वो बहुत डाउन स्ट्रीम है। मतलब वो जो वाटर बॉडी का क्लियरेंस उसमें है वो ओनली 60 mm है। तो वहाँ पे जाके फॉल्ट फाइंड आउट करना और उसको रेक्टिफाई करना तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज है। टीम उसके ऊपर उनको ट्रेन किया गया है, वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। यहीं पर स्कैडा सिस्टम काम आता है। ये हर स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और किसी भी दिक्कत को पहले ही पकड़ लेता है। इससे प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही अलर्ट मिल जाता है। ये सिर्फ एक सोलर प्रोजेक्ट नहीं है, ये विजन, हिम्मत और एकता की कहानी है। When you have a lot of learnings in one particular site, that site becomes so close to heart. So this is such a site which gave lot of learning to lot of people who worked for this project. As India races to meet its growing demand for power, projects like this show how clean energy can be smart, scalable, and sustainable. Omkareshwar sets a new benchmark, not just for what renewable energy infrastructure can be, but for what it must be. Tata Power. Sustainable is attainable. Tata Power. Sustainable is attainable. With scale comes responsibility.
The big question is, how do we make sure India's clean energy transition is not just fast, but fair? Solar's huge, but wind? It's just as powerful. Take Pulavadi Wind Farm in Tamil Nadu, a massive cutting-edge project. पुलावड़ी में हवा सुबह सुबह उठती है और वो लोग भी जो उस हवा से बात करते हैं। यहाँ तमिलनाडु के दक्षिण हिस्से में 66 विंड टर्बाइन्स खड़ी हैं, एकदम शांत प्रहरी की तरह। ये सब मिलकर 99 मेगावाट क्लीन पावर जनरेट करते हैं। इतना कि आसपास के गांव रोशन हो जाएं, स्ट्रीट लाइट्स रोशन रहें और घर, स्कूल और क्लिनिक तक पावर पहुंच सके। So Tata Power did this 99 megawatt Pulavadi project in Tamil Nadu, and that project we are today operating at a very excellent operating parameters. 1,200 technicians deployed again, they were trained. The execution was planned so beautifully. Every time we have analyzed the risk and accordingly developed the safety measures and deployed them, constantly monitoring of those safety measures and ensuring that there is absolutely no harm to anybody. टर्बाइन के अंदर सब शांत होता है, सिर्फ स्टील के बीच बहती ताकत की एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। आप 80 से 85 मीटर ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियों, केबल्स और पतले प्लेटफॉर्म्स के बीच से होते हुए, जब तक आप सीधे ब्लेड्स के आमने सामने नहीं पहुंच जाते। सेंसर्स चेक किए जाते हैं, ब्रीदर्स को देखा जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जांच होती है। आप उस मशीन के अंदर से हवा को महसूस करते हैं जो उसी हवा को कैप्चर कर रही होती है। विंड टर्बाइन असली में कैसे काम करता है? ब्लेड्स हवा को पकड़ते हैं जिससे रोटर घूमता है और वो गियर बॉक्स को चलाता है। गियर बॉक्स जनरेटर को ड्राइव करता है और फिर बिजली सीधे ग्रिड में चली जाती है। पुलावड़ी साउथ तमिलनाडु के एक प्राइम विंड कॉरिडोर में बसा है, जिसे पाल घाट गैप बनाता है, जहां भौगोलिक संरचना आधा काम खुद ही कर देती है। रोलिंग हिल्स यहाँ की वादियों से तेज मौसमी हवाओं को अंदर की तरफ ले जाती हैं। पीक टाइम में हवा की स्पीड 40 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचती है, जो इन विशाल टर्बाइन को चलाने के लिए काफी होती है। जमीन पर टीमें बिना कांटे वाली झाड़ियों, बदलते मौसम और लाइव पावर लाइन्स के बीच काम करती हैं। ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் டாடா சைட்லேருந்து நியூலி ஒரு சேஃப்டி ஸ்டிக்கு நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எம்ப்ளாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா எனி எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்லேருந்து அவங்கள ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கடுத்து நாங்கள் ஓல்டேஜ் டிடெக்டர் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஃப்டி ஹெல்மெட்லேயே அப்படி ஸ்டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது எம்ப்ளாயி இப்போ ஆன்லைவ் லைனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அந்த டயத்தில் அதில் சப்ளை இருக்கா இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே அது டிடெக்ட் பண்ணி காமிச்சிடும். हवा का रुख कभी तय नहीं होता, इसलिए कंट्रोल टीम हर टर्बाइन पर नजर रखती है, वो भी रियल टाइम में। अगर कुछ गड़बड़ हो, जैसे नमी बढ़ना, गियर का गर्म होना या वोल्टेज गिरना, तो टीम को उसकी जानकारी पहले ही मिल जाती है, इससे पहले कि वो बड़ी दिक्कत बने। पुलावाड़ी से जो बिजली बनती है वो इस पहाड़ी इलाके के दूर दराज के गांवों तक पहुंचती है, जहां पहले बिजली कटौती आम बात थी और अंधेरा रात से पहले ही छा जाता था। புலவாடி சைட்டில் மொத்தம் 11 பஞ்சாயத்து இருக்குது. நம்ம கரண்ட் சப்ளை கொடுக்குறோம். அப்புறம் லோக்கல் வில்லேஜஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ்க்கு நம்ம இன்வால்வ் பண்ணுறோம். லைக் டிக்கிங், மேஜர் ஒர்க் அண்ட் ஹெல்பிங் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் सपोर्ट। इस जगह को खास सिर्फ यहाँ बनने वाली बिजली ही नहीं बनाती, बल्कि वो हौसला, वो समुदाय, वो ख्याल है जो इसे एक साथ जोड़ कर रखती है। Big projects like Pulavadi Wind Farm are vital, powering cities and meeting India's massive renewable goals. But here's the thing, not all clean energy needs to come from mega infrastructure. Enter group captive solar projects. They flip the script. Group captive solar plants are proving that clean energy can be local, affordable, and truly transformative.
26% इक्विटी इन्वेस्ट करता है। जेनरेट की गई बिजली का कम से कम 51% कंज्यूम करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कंपनियों और कार्बन सेविंग्स की नहीं है। There are multiple villages which are in vicinity of this solar park, and we have comprehensive corporate social responsibility programs to uplift their livelihoods across the villages. So we also provide the employment to the villagers to expose themselves in the industries. मिलिए समर्थ से, जो पास के ही एक गांव में पले बढ़े और कभी घर से 300 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से वो वापस अपने गांव में हैं, वहीं जहां उनका दिल है। मैं इन्वर्टर मेंटेनेंस, एसी मेंटेनेंस, ये पूरा काम करता हूँ। मैं इधर गांव में नौकरी करता हूँ। अच्छा काम मिला है गांव में और 4 पैसे बच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट ने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है और रिवर्स माइग्रेशन को मुमकिन बनाया है। और ये सब करते हुए प्लांट को टॉप टियर एफिशिएंसी के साथ चलाया जा रहा है। आपल्या गावामध्ये जे 20-22 वर्षाचे मुलं आहेत त्यांना बाहेर जावं लागत होतं शिक्षणासाठी, अक्कलकोटच्या बाहेर जावं लागत होतं। टाटा सोलरमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना जॉब मिळत आहे। त्यांना गाव सोडून कुठे जाता येईना। आई वडील ज्यांचं जे घरदार आहे त्यांना न सोडता इथे सगळ्या प्रकारे त्यांना काम करून राहण्यात यश आलेलं आहे। त्यांना बाहेर जायची गरज नाही। एक सोलर प्लांट सूरज की रोशनी से चलता है, लेकिन अक्कलकोट में ये अपनी कम्युनिटी की ताकत के बल पर चलता है। Though this is a group captive site, doesn't mean that it is only benefiting the corporates, but simultaneously it is benefiting a lot to the community. पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे इस एरिया का बहुत कम है, तो अलग अलग CSR के इनिशिएटिव्स के माध्यम से इन लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ाए, इसलिए पहले हमने फोकस किया स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के ऊपर। गांव के एक कोने में कुछ महिलाएं सिर्फ कपड़े नहीं सिल रही हैं, वो अपना आने वाला कल भी बुन रही हैं। उन्हें सिलाई की ट्रेनिंग दी गई है और अब आसपास के कस्बों से ऑर्डर भी आने लगे हैं। अनोखा धागाच्या माध्यमातून व टाटा पॉवरच्या ह्यांच्या माध्यमातून आम्हाला विविध ठिकाणी नेऊन प्रशिक्षण दिलं। मग त्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातूनच आम्ही शिवण क्लासचं हे प्रशिक्षण निवडून आता शिवण क्लास म्हणजे 2-4 पैसे मिळवत आहे मी घरी बसून। गावात सुद्धा माझं अस्तित्व चांगल्या ह्याच्यानं ओळखत आहेत। हे रुपाली पोद्दार काय होते बाबा, आता काय झाली असं लोकांना वाटत आहे। पास ही एक और समूह की महिलाएं ट्रेडिशनल स्नैक्स हाथों से बना रही हैं और बेच भी रही हैं। अक्कलकोट एक सेमी एरिड जोन में आता है, जहां पानी ही जीवन रेखा है। टाटा पावर का सहयोग हमारे वाटरशेड ट्रीटमेंट इनिशिएटिव्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है, जिससे जल स्तर में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अधिकार इनिशिएटिव की मदद से लाभार्थियों को कई सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया गया है। जे पावसाच्या निसर्गाच्यावर जेवढा अवलंबून आहे तेवढंच करत होता। निसर्गच बंद झाला की सगळं बंद झालं। टाटा पॉवरने नाला बेडिंग झाल्या, मातीकाम झाल्यामुळे पाणी साचल्यामुळं मला बी पाणी साचल्यामुळं मला बोर मारायची वेळ आली। त्यात मशीन पण मंजूर झाली होती, त्यांनी पाय थोडं सहकार्य केले, त्याच्यामुळं ते यशस्वी होऊन गेलं। थोडं गहू घातलं, थोडंफार शेंगा घातलं तर चाललं व्यवस्थित। पानी के साथ साथ अब किसान सॉइल टेस्टिंग से लेकर क्रॉप प्लानिंग तक हर जानकारी पा रहे हैं, ताकि हर सीजन की उपज पहले से ज्यादा हो सके। बच्चों के लिए 2 पहियों पर चलता एक मोबाइल साइंस लैब सीधे उनके दरवाजे तक लर्निंग के साथ खुशियां लेकर आता है। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से लेकर बायोलॉजी मॉडल तक ये लैब ऑन बाइक पहल साइंस को मजेदार बना देता है। एक सेपरेट टीचर आते हैं जो पूरी लैब जैसे बाइक पे लेके आते हैं। जब सर सिखाते हैं तो टाइम बहुत जल्दी जाता है, हमें लगता है कि ब्रेक नहीं चाहिए, हमें और सीखने को मिले तो बहुत अच्छा होगा। और सर जो सिखाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे से समझ जाता है। एनर्जी से लेकर सामान अवसर तक, सन पावर्ड ग्रिड से लेकर सेल्फ एम्पावर्ड लोगों तक, अक्कलकोट ग्रुप कैप्टिव प्लांट सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये असली ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर है। This is what the future looks like. Floating solar plants on rivers, wind turbines on ridgelines, rooftop panels on rural schools. Clean energy that works for everyone.
In this future, Tata Power isn't just keeping up, they are leading the charge by collaborating with partners, empowering local communities, and enabling businesses through innovative models. It's happening right here, across India. And this is just the beginning. Tata Power. Sustainable is attainable.